नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 25 में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट बिल्डकॉन 2025 नामक भारत के सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल एक्सपो का उद्घाटन 13 अप्रैल 2025 को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन वैश्विक निर्माण और बुनियादी ढांचा उद्योग का एक ऐतिहासिक समागम होगा, जिसमें 27,000 वर्ग मीटर के प्रदर्शनी क्षेत्र में 250 से अधिक प्रदर्शक, 50,000 से अधिक घरेलू आगंतुक और 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। आइए सुनते हैं कैपेक्सल के अध्यक्ष रमेश मित्तल क्या कहते हैं। And is functioning under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. We are an export promotion council looking after. We are an export promotion council looking after the exports of 16 different product panels, which consists of 1,300 plus HSM code items, which is a vast area that we cover. It includes mineral sector and also non-mineral sector. And among mineral sector, we have this raw minerals plus granites, marble, stones, processed minerals, and in the other sector, it is all tiles, glass, cement, and paint, and many other such products. Plus, of course, paper, books, many other things. So in all, these are 16 different products that we look after exports of. Idea of Vibrant Bilcon was developed as the government wants that there should be one nation, one expo, or one nation, one big exhibition, which means if we have nearly 7 product panels which are associated with the construction industry. So the idea was that an exhibition is started, which is both for the domestic as well as international buyers, and slowly once it picks up the name worldwide, then buyers or interested people will be coming from abroad also regularly once it picks up. So this was the whole idea, and so it is, we are just following as per the guidelines of the government that there should be large-scale exhibitions coming up in our country, so that we also expose, like there are expos worldwide which are well known. So slowly we will also have maybe half a dozen or 10 expos of different products, so that they become popular worldwide. So that was the whole idea. Why the products that we currently, related to building construction or building materials, we have about $13 billion exports at the moment. And by 2030, we expect to raise it to $30 billion and $18 billion. So slowly, the idea behind it is that we are able to have more export. Also, we are able to sell things much more in India as well. And you see, the purpose of the idea behind Vibrant Bilcon, the other idea was that if whatever we spend on the Vibrant Bilcon today, perhaps we'll be able to do maybe 20 times more export every year. And so likewise, things will, bring in a lot of foreign exchange for the country. India's reputation will also be strengthened because we are able to produce now high quality stuff in all fields. So therefore, this is another area that we want to popularize ourselves. And this is, the idea behind it is that we are looking at Viksit Bharat by 2047, and in terms of making it a developed India, we all have to contribute together and make sure that we develop in every walk of life. So we will be, through these events, we will be creating networking and collaboration opportunities between domestic manufacturers and international buyers, between domestic manufacturers and distributors, in India, domestic manufacturers and the consumers who would like to see new products, the consumers in it, domestic consumers, so that
they are also impressed and they have some idea on whatever, if they want to build any house or building or anything, they have all that to carry forward. So, of course, finally we'll be ending up in earning potential foreign exchange. That's what we are looking at. So this is the whole idea behind this event, and we need your cooperation. Honorable Shri Piyush Goyal ji, Minister of Commerce and Industry, has consented to inaugurate this event on Sunday morning at 9:15. So we would like to invite all of you there so that you are able to cover that event as well. Thank you all. ये मीटिंग में सब पत्रकार मित्र और मीडिया के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। ये एग्जीबिशन 13 से 16 विश्व भूमि में है। मेन जो एग्जीबिशन में आफ्टर ऑल क्या मिलेगा, कि जो महाकुंभ होने जा रहा है उसमें से क्या कंट्री को क्या फायदा होगा, इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा और लोगों को क्या फायदा होगा। तो खास करके ये 80 से ज्यादा कंट्री से बाहर आ रहे हैं, हर एक सेक्टर से बाहर हम ला रहे हैं। ऑर्गेनाइजर है कैपिटल की पूरी टीम, भारत सरकार का भी सहयोग रहा है। एम्बेसी जो है भारत सरकार की वो भी काफी सपोर्ट करके 6 बायर को हम ला रहे हैं। और वो बायर वो है जो दूसरी कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। मोर देन 50% बायर ऐसा है जो इंडिया से आज तक इंपोर्ट ये प्रोडक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे बायर को ला रहे हैं। तो ये होगा कि जो नया बायर हो इंडिया से अपना माल लेके जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वरना एबीसी कंपनी से ले रहे हैं और XYZ कंपनी से ले रहे हैं, उससे कोई हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। तो मेन आइडिया ये भी है कि नए बायर हम लेके आए। दूसरा कि कोई भी एक्जीबिटर जब अलग अलग कंट्री में जाते हैं, एज ए मैन्युफैक्चरर मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैं अलग अलग कंट्री में जाऊँगा तो मेरी 10 टीम अगर पूरे साल दुनिया भर में घूमेंगे और करोड़ों रुपया खर्चा करके जो काम नहीं होगा। सपोज एग्जांपल अभी रशिया में एग्जीबिशन था तो करीबन 50 मीटर स्टॉल का आपको एक्सपेंस करना है तो 50 लाख का खर्चा होता है और वो पूरा 50 लाख है वो दूसरी कंट्री में चला जाता है, वो हमारी कंट्री में एक भी रुपया नहीं रहता है। यहाँ पे रिवर्स होता है कि हमारे देश के अंदर जब एग्जीबिशन बनता है तो यहाँ पे जो भी वर्कर होंगे, जो स्टॉल डिजाइन करेंगे, जो भी कंपनियां होगी, होटल होंगी, टैक्सी होगी, लोग यहाँ से इंडिया आएंगे तो परचेसिंग करके जाएंगे। तो ये भी है कि वो फॉरेन से जो बाहर आ रहा है उसका जो भी खर्चा होगा वो हमारी कंट्री के लिए होगा और स्टॉल डेकोरेशन के लिए भी वो जो पैसा है वो हमारे देश में रहेगा। सबसे बड़ा है कि जो एक कंपनी को अगर एक कंट्री में कोई एग्जीबिशन करते हैं तो सिर्फ रशिया में रशिया के ही बाहर आएंगे। यहाँ पे एक ही जगह पे पूरी दुनिया से बाहर आएंगे तो मतलब एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करके हम पूरा वर्ल्ड का मार्केट ले सकते हैं कम समय में। तो एग्जीबिटर को भी फायदा हुआ, देश के लिए भी फायदा हुआ। और तीसरा जो भी खास करके मैं इनवाइट करता हूँ, जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, ये एक्सपो के अंदर काफी ऐसी नई प्रोडक्ट होगी कि जो प्रोडक्ट का नई इनोवेटिव प्रोडक्ट होगी तो एक जगह पे पूरी बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए एक जगह पे अपनी प्रोडक्ट को देखने को मिलेगा। तो ये गोल्डन चांस है विजिटर के लिए भी। तो मैं आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को आमंत्रित करता हूं जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में है, बिल्डिंग मटेरियल में है, ये एक्सपो का मुलाकात ले और जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके साथ तो वो जुड़े। अपना जो घर है, सपनों का घर, उसको कैसे सजाया जाए, उसकी प्रोडक्ट एक ही जगह पे उसको दिखने का मिलेगा। थैंक यू। बायर्स मोर देन 70 कंट्रीज से आ रहे हैं। दूसरा जो भी सेक्टर है जहाँ पे सिरामिक, टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर, बाथरूम फिटिंग, सीमेंट, स्टील, लेमिनेट, प्लाईवुड, उन सभी का वहाँ पे मोर देन 250 प्लस कंपनीज वहाँ पे अपना जो स्टॉल है वहाँ पे लगा रही है। दूसरा इंडिया से और इंटरनेशनल बायर्स काफ़ी आएंगे, वो सभी एक मार्केट पे उन सभी को इंटरनेशनल बायर को भी मिलेगा और डोमेस्टिक डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर और बिल्डर, ये सभी का एक महाकुंभ हो रहा है जहाँ पे हमारे ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर सुनील सेठी, वो भी आ रहे हैं और पीयूष गोयल साहब के हाथों से हम इनोग्रेट कर रहे हैं 13 तारीख को। तो रेरा भी इसमें रहेगा क्या? दे ऑल आर द सपोर्टेड।
चेयरपर्सन कैपेक्सिल। जी। हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो महाकुंभ है, इससे हमारा आइडिया जो बेसिकली चल रहा है कि हम टोटल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जितने भी हो धीरे धीरे वो सारे उठा के एक तो हमारी डोमेस्टिक पब्लिक के सामने भी रखेंगे और इंटरनेशनल के सामने भी ये एक मेगा एक्सपो बनेगा। यही एक आइडिया लेकर हम चल रहे हैं कि इसको लंबे तौर पे एक मेगा एक्सपो बनाने का है, ताकि जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हमारे कंट्री में हम जाते हैं फॉरेन में कई एग्जीबिशन में, धीरे धीरे हम ऐसा कर लें कि कुछ ऐसी बड़ी एग्जीबिशन हो जाएं कि लोग चल के आएंगे विदेश से कि वहाँ जाके कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, वहाँ चलते हैं। सो ये सारा आइडिया लेकर और इसी के पीछे हम पूरा ये आप लोगों के सौजन्य से और आप लोगों की सहायता से हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले 2-3-4 साल के अंदर अंदर ही ये एक्सपो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा, क्योंकि लोग इसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे, चाहे वो एग्जीबिटर्स हैं, चाहे मैं कहता हूँ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स या जो भी हैं, चाहे वो CPWD और ऐसी संस्थाएं हैं सरकार की, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी हुई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई। अभी भी यहाँ कुछ सेमिनार्स भी होंगी इस दौरान में, जहाँ IITs वगैरह से कुछ प्रोफेसर्स वगैरह स्टैंडर्ड्स पे और लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शंस पे और पे अपना अपना विचार भी रखेंगे। तो धीरे धीरे ये एक तरह से पूरा संगम बन जाएगा, विचार विमर्श की गोष्ठियाँ होने का भी और एग्जीबिशन का भी। नीलेश जेतप्रिया, सीनियर वाइस चेयरमैन कैपेक्सिल, सिरामिक पैनल। ये संगम कितना बड़ा होने वाला है और कितना आम जनता को या सबको कितना बेनिफिट इसमें मिलने वाला है? खास करके पहला ऐसा एग्जीबिशन जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है कि जहाँ पे पूरे इंटरनेशनल बायर 70 से ज़्यादा कंट्री से आ रहे हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर का ये पहला ऐसा एग्जीबिशन होने जा रहा है। आज काफ़ी क्लस्टर इस सब प्रोडक्ट में से काफ़ी क्लस्टर वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में पहुंच गया है। पीछे काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो सप्लायर और बायर उनका जो एक मैचिंग होना चाहिए, जो दोनों का जो जुड़ना चाहिए, वो कोई ऐसा छोटी कंपनी है, वो MSME वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में नहीं जा पा रही है और इंडिया में कोई ऐसा एग्जीबिशन नहीं है काफ़ी प्रोडक्ट में जो बायर यहाँ पे आए। तो ये एक वन नेशन वन एक्सपो के थ्रू मतलब पूरी बिल्डिंग मटेरियल के कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एक जगह पे होंगे और पूरी दुनिया से बाहर आएंगे। तो इसमें काफ़ी बड़ा जो है देश के ये सेक्टर के लिए काफ़ी ये फायदेमंद होने वाला है। और ख़ास करके मैं अगेन बोलता हूँ कि डॉलर बचाना, आज हम कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमारा एग्जीबिशन के लिए जो खर्चा होता है वो पूरी वो देश के अंदर वो खर्चा होता है, वहाँ पे उन देशों के लोगों को रोजी रोटी मिलती है, वहाँ के सब ऑर्गेनाइजर सब जो होता है, वहाँ की जो टैक्सी है, होटल है, वो फ़ायदा वहाँ होता है। आज यहाँ पे जब इंडिया में एक्सपो होगा और पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो ये होगा कि जो भी बाहर आएगा यहाँ पे रहेंगे, उसकी होटल यहाँ पे जो परचेसिंग करेंगे, यहाँ घूमेंगे, जो भी मतलब यहाँ पे जो खर्चा होगा भारत में रहेगा और एग्जीबिशन में जो भी कॉस्ट होगा वो भी भारत में रहेगी। तो एक तरफ से हमारा देश का जो डॉलर का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, डॉलर इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। और आने वाले समय में मानता हूँ कि भारत आज पूरी दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो आगे जा रहा है, उसके अंदर ये बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा और आने वाले समय में इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा ग्रोथ है।